Hello dear students, in this video we will discuss the gene mutation. It is a part of the point mutation. For point mutation and gene mutation, they both are same. Gene mutation further divide into three types of categories: point mutation, inversion mutation and the frame shift mutation. First of all, we will discuss the point mutation. The best example of the point mutation is sickle cell anemia. It is present in your NCERT book also. Basically, sickle cell anemia means the particular human being which is suffering from the sickle cell anemia, in their RBCs, all RBCs are converted into the sickle form due to the deficiency of the oxygen. Why this deficiency of oxygen will take place in the sickle cell anemic patient? Because in hemoglobin, in normal human beings, the hemoglobin is made up of the long polynucleotide chain, and this known long polynucleotide chain is made up of different types of amino acid. And the sixth amount of amino acid is related to the glutamic acid, and this glutamic acid is represented by a triplet code which is known as GAG, guanine, adenine and guanine. Guanine, adenine and guanine ये क्या करता है, ये ग्लूटामिक एसिड नाम के अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी ब्लड में नॉर्मल कंडीशन में आरबीसीज पाई जाती है. This is the normal position which is related to the normal human beings. If this A, adenine, is replaced by U, if GAG A is replaced by U, A की जगह पर अगर U आ जाता है, यानी कि एडेनिन की जगह पर अगर यूरेसिल नाम का नाइट्रोजनस बेस आ जाता है, देन दिस ग्लूटामिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू वेलिनिन. ये ग्लूटामिक एसिड जो 6 नंबर पर है वो वेलिनिन की तरह काम करने लगता है, और जब ये वेलिनिन की तरह काम करने लगेगा तो जितनी भी आपके पॉलीनुक्लियोटाइड चेंज है उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा. इट मीन्स जो नॉर्मल ह्यूमन बींग जिनके अंदर ग्लूटामिक एसिड था, अब उनके अंदर वेलिनिन हो जाएगा, तो उनकी जो आरबीसीज हैं वो पहले की तरह नहीं रहेंगी. दे बर्स्ट एंड कन्वर्ट इनटू द सीकल शेप स्ट्रक्चर, और वो फूट करके सीकल यानी कि हंसी के आकार की होने लग जाएंगी. सो ओनली ए इज रिप्लेस्ड बाय यू. ए को रिप्लेस कर दिया जाता है यू के थ्रू, तो केवल यू के चेंजेस लाने, ए और यू में चेंजेस लाने से ही पूरे के पूरे ह्यूमन बींग्स की जो आरबीसीज होती है उनमें ही चेंजेस आ जाते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पॉइंट म्यूटेशन. इसलिए पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज नोन एज इन्वर्सन. इन्वर्सन मीन्स whenever the nitrogenous bases they change their place. For example, G is represent a amino acid. If G is replaced by A and A is replaced by G, then what happened? यानी G की जगह पर A आ जाता है और A की जगह पर G आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे GAG में. एंड दिस GAG triplet code represent the another types of amino acid. So it is known as inversion. Next one is known as frame shift mutation. Frame shift mutation का मीनिंग क्या होता है? Frame shift mutation mean the mutation involving on insertion or deletion of a base can causes great effect. So what is the meaning of this line? We can easily understood the mechanism of the frame shift mutation with the help of a punchline which is known as why did the cat eat the rat? Why did the cat eat the rat? हमने इसी को ही क्यों लिया है? Because इसमें हर एक सेगमेंट में देखिए आप 3 ट्रिपलेट कोड की तरह वर्ड्स आ रहे हैं. Why did the cat eat the rat? Suppose for example, अब आप इस पूरी लाइन को आप समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे ट्रिपलेट कोड हैं, अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम इस पूरे के पूरे सेगमेंट में से किसी भी एक पोर्शन को हटा दें, सपोज ड्यू टू द म्यूटेशन की वजह से कोई भी पोर्शन अगर यहाँ से हट जाता है, सपोज डी यहाँ से हट गया है, इस डी इज डिलीटेड. अगर ये डी डिलीट हो जाएगा तो सारा का सारा जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ को. इट मीन्स वाई तो एज इट इज सेम रहेगा, बट डी के हटने से क्या हो जाएगा, IDT बन जाएगा और ये HEC में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो डी के डिलीट होने की वजह से क्या हो जाएगा, YIDT HEC ATE ATT HER एंड AT इज सिंपल. तो इस वजह से क्या होगा, इन फर्स्ट लाइन एंड द सेकेंड लाइन देयर आर मेजर चेंजेस, एंड दीज ऑल चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स. हर एक का मीनिंग भी अलग अलग हो गया. यहाँ पर देखिए द कैट था, यहाँ पर द कैट है ही नहीं है. सो दिस इज नोन एज पर्टिकुलर एरियाज में अगर क्या होता है, कोई पोर्शन आपका नाइट्रोजनस बेस डिलीट हो जाता है. दिस इज नोन एज एवरीथिंग शिफ्ट इटसेल्फ. नाउ सेकेंड टर्म इज नोन एज इफ इंसर्शन.
if another nitrogenous base added into it. फॉर एग्जाम्पल वाई डिड द कैट ईट द रैट, अगर इसमें वाई के बाद यहाँ पर एक्स ऐड हो जाएगा, फिर से सेम चीज़ क्या हो जाएगी, फ्रेम क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे वाई एक्स यहाँ पर ऐड हो गया तो एक्स डी आई हो जाएगा, देन ये आगे शिफ्ट हो जाएगा डी टी ई, देन ई सी ए, देन टी ई ए, देन टी टी एच, देन ई आर ए, देन टी। इससे भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो आपका फ्रेम है वो शिफ्ट होकर के अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करने लगेगा, अलग अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करने लगेगा। एंड दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये कहलाता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।